Hello dear children, this is Brain Teasers Part 6 brought to you by your favorite maths teacher, and we are doing algebraic identities. We are doing algebraic identities. We are refreshing ourselves with what we have already learned. Now this is question number 7 of Brain Teasers, and it is to factorize. Factorize, and question number 1 is z square minus 4z minus 77. Z square minus 4z minus 77. How will you factorize this? You bring it to the standard form. It will become z square plus minus 4 into z plus minus 77. Now factorize 77 in such a way that if you add or subtract these factors, you will get the middle term. So see, 11 sevens are 77 and 11 minus 7 equal to 4. But we need minus 4. So it will be 7 minus 11. So in the middle we will write 7 minus 11, and for 77 we will write 7 into minus 11, and for minus 4 we will write 7 minus 11. So this much research work we have to do before factorizing the given algebraic expression. Now let us see what we will get after doing this much work. See, here you will get z square plus 7 minus 11z plus 7 into minus 11. Now just expand z square plus 7z minus 11z plus in the bracket 7 into minus 11. Now take common from the first two terms and then from the third and fourth term. Now see what common you are going to get. You will get z, and z plus 7 will be inside, and in the second one you have minus 11 common. So if you take out minus 11, in the bracket you will get again z plus 7. So finally you will get z plus 7 into z minus 11. So this is question number 1. Now let us see what we are going to get in question number 2. See what is given in question number 2. In question number 2, it is x square plus 25x plus 144. There is no need to put it in the standard form because it is given in the standard form. Now you have to factorize 144. What you have to do? You have to factorize 144. So when you factorize 144, you will get 12 into 12, 16 into 9 like this. And you have to find out factors in such a way that the sum or difference brings you the middle term. Now see, 16 9s are 144 और ये यहाँ पर अच्छे से सूट करता है क्योंकि 16 plus 9 आपको 25 देता है. So what shall we use? We shall use 16 and 9. So we shall use 16 and 9. Come on. So let's write x square plus 16 plus 9. 25 के लिए हम लोग लिखेंगे 16 plus 9 plus 144 के लिए लिखेंगे 16 into 9. इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा. Now expand it. इसको expand करिए. x square plus 16x plus 9x plus 16 into 9. अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है? हम लोग को फर्स्ट और सेकेंड टर्म से और थर्ड और फोर्थ टर्म से कॉमन निकालना है. When you do this, in the first and second, you will get x common and x plus 16 will remain inside. And in the second, third and fourth, you will get 9 common. So plus 9 and you will get x plus 16 inside. Now you will get x plus 9 into x plus 16. So these are the factors of question number 2. Now see what is given in question number 3 and 4. See what is given in question number 3. X square plus 5x minus 104. So put it in the
standard form. So x square plus 5x plus in the bracket you will get 104. Now take out factors of 104. See, 2 5s are 10, 2 2s are 4. Again 2 2s are 4, 2 6s are 12. Again 2 13s are 26 and 13 1s are 13. Now see, 2 2s are 4, 2s are 8 and 13 into 8 is equal to 104 and 13 minus 8 is equal to 5. You need minus 104, so 13 into minus 8 will give you minus 104. So this much research work is over. Now you just substitute it. 13 into minus 8 for 104 and 13 minus 8 for 5. So see, this will become x square plus 13 minus 8 into 5 plus 13 into minus 8. So see, this will become x square plus 13x minus 8x plus 13 into minus 8. So this will be x into x plus 13 and here you will get minus 8 common. So minus 8 if you take out, you will get x plus 13. So you are left with x plus 13 into x minus 8. Okay. So let's see the next question, that is 49x square minus 64. 49x square minus 64. I am just rubbing this one so that you can do the rest sums easily with more space. चलिए आगे देखते हैं. 49x square minus 64. इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर. नाउ दिस हैज कम टू योर फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या मतलब होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b. तो सिंपली देखिए बच्चों कितना आसानी से आ गया, 7x माइनस 8 इंटू 7x प्लस 8. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं. सो प्लीज लिसन केयरफुली. दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यहाँ देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वेयर, इसको कैसे करेंगे? आप ध्यान से देखिए बच्चों कि आपका सेकेंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म नेगेटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव, तो सभी में से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए. सो व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वेयर माइनस अगर कॉमन निकालते तो 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वेयर आ रहा है. और अगर इसको आप ये वाला टर्म को आप अगर घुमा के लिखते हैं उधर से इधर, तो व्हाट यू विल गेट, एक्स स्क्वेयर माइनस सी वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 1. अब इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर में आ गया है. तो इसका मतलब हो गया ये बन रहा है आपका y प्लस 1 होल स्क्वेयर. क्या बन रहा है? y प्लस 1 होल स्क्वेयर. अब देखिए ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1 होल स्क्वेयर, ये अगेन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में आ गया. इसका मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. और जब आप इसका ब्रैकेट हटाएंगे, इफ यू विल रिमूव द ब्रैकेट हियर, यू विल गेट x माइनस वाई माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वेयर माइनस 12 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 9. अब जैसे इसको देखते हैं तो देखिए एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये वाला फॉर्म में आ गया है. बट अगर इसको आप इस तरह से करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा. चलिए हम यहाँ x माइनस वाई की जगह अगर a यूज करते हैं तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, वी विल गेट 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9 if you will put a for x minus y. So what will happen, it will become 4a square minus 12a plus 9. बच्चों अब ध्यान से देखो, this 4a can be written as 2a whole square and this 9 can be written as 3 whole square. अब देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर, बीच में क्या है, माइनस 12a, तो ये क्या 2a भी बन रहा है क्या, माइनस 2 इंटू 2a इंटू 3. अब देखिए तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12a माइनस 12a आपका बन रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि ये 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर है. ये क्या है,
2a माइनस 3 का होल स्क्वायर, बिकॉज 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर के साथ आपका जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है ये मैच कर रहा है. सो दिस विल बिकम 2a माइनस 3 होल स्क्वायर. अब आपका a क्या था? x माइनस वाई. जस्ट पुट इट 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3 इन द ब्रैकेट होल स्क्वायर. तो दिस विल गिव यू 2x माइनस 2y माइनस 3 होल स्क्वायर. सी क्वाइट इजीली डन, वेरी इजीली डन. इसको बहुत आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले उसको समझना पड़ेगा. अभी आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाना है. यदि आप यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स, बहुत टेंशन लग रहा है कि यहाँ कैसे होगा. 4 टर्म्स है, किसी के भी साथ कोई भी आइडेंटिटी के साथ ये मैच नहीं कर रहा है. नाउ यू हैव टू डू वन थिंग. यहाँ थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. यू हैव टू रीऑर्गेनाइज. सी ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स, या ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स वाई एक साथ लाना पड़ेगा, जहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं. चलिए हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स लिखते हैं इसको. अब यहाँ देखिए इसमें एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स ये वाले टर्म में है, तो यू कैन टेक आउट एक्स कॉमन, तो यू विल गेट एक्स माइनस वाई प्लस. अब यहाँ देखिए वाई माइनस एक्स आ रहा है, अगर 1 कॉमन निकालते तो अब हम यहाँ अगर -1 कॉमन निकालेंगे तो आपका ये जो y है वो माइनस वाई हो जाएगा और ये जो x है वो प्लस x हो जाएगा. तो व्हाट यू विल गेट x इंटू एक्स माइनस वाई. अब ये प्लस इंटू -1, सो -1 करिए और ये y माइनस वाई प्लस एक्स को हम x माइनस वाई लिख सकते हैं. तो अब ये आपका बनेगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 1. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्रैक्टिस इट. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है. 81 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 90 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 प्लस 25 इंटू वाई प्लस 2 whole square. So suppose you are taking x plus 1 as a, x plus 1 as a and y plus 2 as b. So see what you are getting. You will be getting 81 a square plus 90 ab plus 25 b square. देख रहे हैं कितना आसान हो गया है. Now see इसको अगर आप लिखते हैं 9a का होल स्क्वायर और लास्ट में आपको आ जाएगा 5b का होल स्क्वायर. बीच में यहाँ प्लस है, so you put 2 इंटू 9a इंटू 5b. अब चेक करिए 9a का होल स्क्वायर 81a स्क्वायर आ रहा है, 5b का होल स्क्वायर 25b स्क्वायर आ रहा है, 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 5 90 आ रहा है. a और b भी हमारे पास आ गया. सो दिस इज नथिंग बट 9a प्लस 5b होल स्क्वायर. अब इसको आप 9a का मतलब क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 1, इसका मतलब हो गया 9x प्लस 9. और 5b का मतलब कितना हो जाएगा 5b मीन्स 5 इंटू वाई प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 10. अब 9a प्लस 5b का मतलब हो गया 9x प्लस 5y प्लस 19. सो 9x प्लस 5y प्लस 19 होल स्क्वायर. सो यहाँ पर आपका ये जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा 9x प्लस 5y प्लस 19 होल स्क्वायर. चलिए लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन. And this last question is very easy. If you can see there are 6 terms, x square plus y square plus z square by 4 plus 2xy minus yz minus zx. ये easy है यदि आपको आइडेंटिटी याद आ जाए. This comes in the identity a plus b plus c whole square. That is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Now see x square plus y square plus z square by 4 है तो ये होगा z by 2 whole square plus अब आगे देखिए 2xy, सो 2 इंटू एक्स इंटू वाई. अब केवल प्लस लेके चल रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसको हम लोग लास्ट में फिक्स करेंगे. पहले हम प्लस में सब कुछ देख लेते हैं. हमारे पास 2ab हो गया. अब 2bc 2 इंटू वाई इंटू जेड बाई 2 एंड प्लस 2 इंटू सी ए जेड बाई 2 इंटू एक्स. अब आप देखिए माइनस किस किस टर्म में है, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है ना. तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है जेड. सो हम लोग क्या कर सकते हैं जेड में नेगेटिव पुट करेंगे. क्या करेंगे जेड में नेगेटिव पुट करेंगे. सो माइनस जेड बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा ये. व्हाट इट विल बिकम
it will become minus z/2 होल स्क्वायर. अब जो जो हमारा z वाला टर्म है उसमें माइनस लगेगा. अब देखिए सारा का सारा सही हो गया. एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई 4 तो माइनस z/2 इंटू माइनस z/2 जेड स्क्वायर बाई 4. 2xy, यस 2xy, माइनस वाई जेड, ये 2 और ये 2 को काटेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस वाई जेड, तो ये भी क्लियर है. फिर यहाँ पर 2 काटेंगे तो माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स. तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास ये सारे टर्म्स हम लोग क्लियर कट नीचे उतार लिए हैं. नाउ दिस विल गिव यू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. तो a हमारा यहाँ x, b हमारा y और c हमारा माइनस z/2 होल स्क्वायर. So here we are completing our factorization and brain teasers part 6. Thank you. That's all in this video. We shall meet again with brain teasers part 7 very soon.